hello, namaskar. I am here with the multi-talented, ravishing, umpteen talents, the pretty diva Spandana Pali. From acting to winning beauty pageants, this versatile lady loves sports and was a state-level volleyball champion. And she has also inspired many to follow their dreams on the TEDx platform. Alongside sports, Spandana's love for dance drew her to learn Kathak. So without any further ado, let me welcome Spandana. Hi Spandana, कैसी हैं आप? Hello, I'm so excited for this interview and thank you so much for this beautiful introduction. No, thank you so much for coming. You know, जब से मैंने सुना कि मुझे आपसे बात करनी है ना, I have been like really, excited कि मुझे स्पंदना से बात करनी है. Same here. Thank you so much. So tell me, definitely you are clearly a woman of many talents, and अब मुझे आज ये बताओ कि who is real Spandana? Real Spandana is this? So basically, I did so many things in my life, I played volleyball, I'm a classical dancer, I learned Kathak, Bharatanatyam, I participate in Miss India, then I become an actor, so many things. But I think from everything, इंसान सीखता है हर चीज़ से. सो आई एम लाइक दैट. आई एम लाइक हर चीज़ से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखना, उसको अपने में डेवलप करना, और दैट्स व्हाट आई एम टुडे. It's lovely to see you. I think you're a beautiful and very bright woman. And it's like really amazing to see you. So, can you just talk about आपका जो transition है from being a national volleyball player to entering the world of modeling and acting? Of course, it was a difficult journey from sports background to glamour industry, because sports is more of rough, tough, and there's nothing to do with your bodies and all. But again, if you talk about the glamour industry, you have to top to bottom you have to be very particular, fit, and makeup, hair, everything should be on. So when I was when I left my volleyball career and I choose to become actor, or I choose to enter in modeling industry, I took more than 6-7 months grooming session in Mumbai. I groomed myself. I prepared myself for this glamour industry, and that journey was not at all good. Always my mom used to say that if you have that capable and if you have that potential, you should try different thing, and that's the reason I tried so many things in my life, and finally I'm ending my things like this. So tell me, अभी आप बात कर रहे हैं वॉलीबॉल से लेके एक्टिंग तक एंड इवन TEDx तक. सो आपकी कौन सी वो फेवरेट वाली अचीवमेंट है वेर यू फील दैट हे मैंने ये एक चीज़ बहुत अच्छा किया? This is literally a very good question, but मेरे हिसाब से क्या लगता है ना, वॉलीबॉल से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. दैट स्पोर्ट्स पर्सन, दैट पंचुअल अबाउट द टाइमिंग एंड ऑल, दैट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो हम कहते हैं, हारने से भी डरता नहीं इंसान. सो मैंने स्पोर्ट्स से वो सीखा. मैंने मॉडलिंग से सीखा कि हाउ यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ, एंड कथक से तो मेरा ये कहना है कि मैंने हर चीज़ से कुछ ना कुछ अचीव किया है. सो व्हेन आई वाज प्लेइंग अ वॉलीबॉल, I'm like a sports like a volleyball captain. Continued 3-4 years tak I was the captain. So it's a proud moment in that field. Absolutely. Then when I participated in Miss India, I was there in top 5. So again it's a proud moment. मुझे नहीं मालूम था कि from a small town, from a middle class family to this journey will be like this much happening. So at the end I just want to say that I'm an achiever and I learn everything from my journey. So मैं एक पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकती कि मुझे क्राउनिंग हुआ तो मैं बहुत प्राउड फील हुई, या फिर मैं स्पोर्ट्स में थी तो मुझे प्राउड नहीं हुआ. नो, एवरीथिंग इज़ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माई फैमिली. सो स्पंदना, मुझे पता है कि आपने MBA करा एंड यू कम्प्लीटेड योर MBA, पर व्हाट वाज इट दैट इंस्पायर्ड यू कि मुझे एक्टिंग में जाना है? So what happened? See,
I'm not very good at studies. अच्छा. Also, when you are into so many activities like other activities, आप कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है. तो when I realized that I'm not very good at studies, I'm a very average student. थोड़ा cheating वीटिंग करा भी है मैंने. So what happened? तो मुझे लगा कि I forgot the question only. Well, आपने कैसे, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप एक्टिंग में जाएं? एक्टिंग में जाएं. सो जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स या लोग बोलते हैं, बॉलीवुड में भी लोग बोलते हैं, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि मैं एक्टिंग करूं, मैं हीरोइन बनूं या मैं हीरो बनूं. नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में जाऊँगी. इट जस्ट हैपेंड. और कहते हैं ना कि God have good plans for you. So मैं एक फ्लो में बहने वाली लड़की हूँ. जो भी आता है just try to give my 100%. So same like what happened, मेरे क्लास में मेरे relatives, मेरे मॉम सब कहते थे you have a good height, you should try for modeling and all stuff. So I started doing a small जो state level के होते हैं, और मैं उसमें win होने लगी. तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि okay let me participate in Miss India. So मैंने फॉर्म फिल किया और विदिन अ वीक मुझे उनका मेल आया और मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई. एंड दैट वाज अ बिग डे फॉर मी, फ्रॉम दैट माय जर्नी स्टार्टेड. ऑल्सो आई वांट टू टेल यू दिस मॉडलिंग एंड एक्टिंग इज अगेन अ डिफरेंट थिंग. तो काफ़ी लोगों को लगता है ओ एक्टर मतलब मॉडलिंग भी है, एक्टर मतलब एक्टिंग करना भी है. तो क्या डिफरेंस है हम जैसे कॉमन लोगों के लिए, व्हाट इज द डिफरेंस? सो बेसिकली modeling is all about doing a ramp shows and all. And acting is literally a very different concept from modeling. So acting में you have to, if you have a script, आपको वो कैरेक्टर को जीना होता है. You have to live in that character and you have to perform, you have to give the dialogues, delivery अच्छी होनी चाहिए. तो जब आप एक्टिंग करते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि शी इज स्पंदना. उसको लगना चाहिए ओ शी इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर एंड शी इज दैट. इफ आई एम फॉर एग्जांपल समवन इज प्लेइंग रानी लक्ष्मीबाई's कैरेक्टर, तो लोगों को वहाँ स्पंदना नहीं दिखनी चाहिए, लोगों को वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई दिखनी चाहिए. सेम इन मॉडलिंग में क्या होता है, इट्स जस्ट शोइंग द कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरीज, दैट्स इट. तो इट्स ऑल अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. But so many girls, what they do is modeling is the most easiest things to get into. तो लड़कियां आजकल क्या करती हैं, मॉडलिंग करती हैं, फिर धीरे धीरे एक्टिंग में चले जाए to build a contacts. So like that वो धीरे धीरे एक्टिंग में जाती है. But I think this is all wasting of time जहाँ आप मॉडलिंग कर रहे होते हो, बिकॉज आप डायरेक्टली अगर एक्टिंग में जाते हो थोड़ा टाइम टेकन है, बट you can get more exposure. Yeah. सो आई नो आप बड़ा ही TEDx प्लेटफॉर्म पे भी हैं. तो एक पीस ऑफ एडवाइस आप हमें दे सकते हैं जो कि हमें मोटिवेट कर सके, और वेयर वी कैन परस्यू आवर ड्रीम्स? As a sports person, I always say that you should be focused and discipline. These two things are so important in your life. आप इससे कुछ भी अचीव कर सकते हो, ट्रस्ट भी कुछ भी अचीव कर सकते हो. सो जो अभी यूथ है आजकल बहुत डिस्टर्ब रहती है, लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे से, मैं यहीं पर हूँ, मैं घर पे ही बैठा हूँ, आई एम डूइंग नथिंग. बट यू हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन, यू हैव टू बी फोकस, और डोंट डू सो मैनी थिंग्स. आप जिसमें आप वो भले छोटा चीज़ भी हो, अगर आप उस पर बहुत क्या कहते हैं मतलब नॉलेजेबल हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप उसी पे काम कीजिए. सो नाउ वी कैन सी द यूट्यूबर्स एंड ऑल. एक टाइम था यूट्यूबर्स का कुछ भी क्रेज नहीं था, बट नाउ दे आर मेकिंग गुड मनी एंड रिकग्नाइजेशन है, तो कंटेंट है एंड एवरीथिंग इज देयर. एग्जैक्टली. यस. तो मैं अभी आपको देख रही हूँ, आपकी बातें सुन रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू नो, यू हैव सच अ डाइवर्स सेट ऑफ टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट. तो आई एम श्योर, आई जस्ट वांट टू नो हाउ इज़ योर टिपिकल डे लाइक, आप कैसे मैनेज करते हैं अपना टाइम टू कीप दैट बैलेंस?
So for me, my mom is everything. She is like my best friend. तो क्या होता है जब आपके फ्रेंड सर्कल छोटा होता है और आपको वो फ्रेंड सर्कल हमेशा मोटिवेट करता है टू डू सच थिंग्स, तो आपके पास बहुत टाइम होता है. एंड द बेस्ट पार्ट लाइक हाउ अक्षय कुमार सर कहते हैं कि सुबह उठते हैं ना, तो जो जल्दी सुबह उठता है उनके पास समय बहुत होता है. एंड एक्चुअली आई फील इट. मैंने ये चीज़ें की हैं लाइफ में कि मैं सुबह 5-6 बजे उठती हूँ, तो मेरे पास बहुत टाइम होता है एंड आई कैन मैनेज माई एवरीथिंग. और तो आई गो फॉर माई डांस क्लासेस, आई गो स्विमिंग, मैं जिम भी जाती हूँ, मैं लोगों से मीट भी कर लेती हूँ, मेरी मीटिंग्स भी हो जाती हैं. तो इट्स ऑल प्लान. अगर आप सुबह उठते हो तो आपके पास दिन लंबा होता है एंड यू कैन जस्ट वर्क हार्ड ऑन योर थिंग्स. सो टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, अगर आपको चांस मिले किसी एक एक्टर के साथ यू नो मूवी में आने का, तो हु विल दैट एक्टर बी? Oh my God, there are so many, but I like Ranveer Singh. He's very hot, obviously, but he's a very good actor too. Akshay sir, really I want to work with these two people. So that's amazing, and both of are my favorite actors too. Yes. So, absolutely, I mean, anytime you can do that. So, ek aur, you know, I want you to give a message out to especially the young people who want to get into these pageants and want to do modeling. So for the pageants, I will suggest start initially going, especially I'm talking about that small town girls, one who wants to participate, because I'm also from a very small place called Raipur, Chhattisgarh. It is in Chhattisgarh. So वहाँ से पैजेंट के लिए ड्रीम करना इट्स अ बिग डील फॉर मी. पर हमने किया और यू नो नाउ टुडे आई एम हियर विथ यू, सो ग्रेटफुल. बट या तो जो भी यूथ जनरेशन है उनको मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि स्टार्ट डूइंग अ स्मॉल थिंग्स. धीरे धीरे आप सोचोगे कि मैं डायरेक्टली मिस इंडिया बन जाऊँगी, वो पॉसिबल नहीं है. आप धीरे धीरे यू नो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन स्टेट लेवल के जो होते हैं, फिर नेशनल, धीरे धीरे आपका ग्रोथ होता है. डू एज मैनी यू कैन डू द रैम्प शोज, और छोटे छोटे जो फंक्शंस इवेंट्स में स्टेज फियर भी चला जाता है. ऑल्सो यू कैन डेवलप योर एक्स्ट्रा टैलेंट, लाइक इफ़ यू आर अ गुड डांसर, उस पर भी फोकस करना चाहिए. सो लाइक दैट जस्ट आप एक पैकेज बन जाओगे. तो व्हेन यू गो फॉर द एनी पैजेंट, व्हेन यू परफॉर्म, व्हेन यू शो योर टैलेंट, योर कम्युनिकेशन स्किल, द वे योर स्टैंडिंग, एवरीथिंग मैटर्स, राइट. सो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से पहले ग्रूम योर सेल्फ. So that is very important. Also, I have a academy called Crown Girl, where I groom girls for the pageants. Wow, tell us a little bit about that. So Crown Girl, how it started. जैसे कि मैंने बताया कि रायपुर इट्स अ स्मॉल प्लेस, और जब मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट की, सडनली हर पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत, जो भी अच्छे टॉप नेशनल लेवल के जो न्यूज़पेपर्स हैं और टीवी चैनल्स है, वहाँ पर चलने लगा रायपुर की लड़की मिस इंडिया पे गई, शी वाज इन टॉप 5. तो सडनली ऐसा रायपुर को लोग जानने लगे इन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में. तो काफ़ी लोगों को मैसेजेस आने लगे, लोगों को पता चलने लगा, लोग मुझसे भी मिलने आने लगे. फिर धीरे धीरे लगा कि ओह दिस इज़ समथिंग कि कोई भी कर सकता है. तब तक ऐसा था कि ये सब सिर्फ यू नो एक कैटेगरी के बाद ही लोग करते हैं. मे बी रिच पीपल ओनली दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और जो मुंबई में रहते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, सिर्फ वही ये काम करते हैं. But I changed it. I'm from a normal background and I did it. So लोगों को लगा oh this is so crazy. Let's meet her. थोड़ा हम और सीखते हैं. तो मैंने सोचा कि I have a knowledge, I have that experience. तो मैंने सोचा कि let me open an academy where girls can come and I can groom them for the pageants. Like that it started. Now I'm taking online, offline classes also. That is like really it's wonderful. Nothing, just I'm sharing my knowledge. Absolutely, and I think you are doing an amazing job. And I know आप even Swachh Bharat अभियान और women empowerment projects में बहुत आपने involve किया अपने आप को. Tell us a little bit more about those.
स्वच्छ भारत अभियान आई थिंक हर इंसान ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और कौन नहीं चाहता कि उनका देश क्लीन रहे और उनका सोसाइटी या इन्वायरमेंट क्लीन रहे. सो या आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट और मैंने काफ़ी लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया. द बेस्ट पार्ट आप जब फेमस होते हो ना तो यू कैन लिटरली यूटिलाइज दैट फेमस और अच्छी अच्छी चीज़ें भी आप कर सकते हो अगर इफ़ यू हैव दैट पॉजिटिवनेस इन योर माइंड. तो मैंने वही सोचा कि अच्छा आई हैव सो मैनी फॉलोअर्स, ओके मैं एक मैसेज इंस्टाग्राम में अपने सोशल मीडिया में डालती हूँ और मैंने डाला एंड लिटरली नेक्स्ट डे काफ़ी लोग आए थे, मोर देन 100-200. और हमने छत्तीसगढ़ के में बहुत काम किया, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, फॉर द क्लीननेस एंड ऑल. एंड हमको वहाँ के सीएम से रिकग्नाइजेशन भी मिला, अवार्ड्स मिले, कुछ पैसे मिले विच वी यूटिलाइज्ड इन अदर थिंग्स. सो लाइक दैट. आखिर में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि एक एडवाइस दे ताकि फॉर एवरीबडी आउट देयर, हमारे ITV गोल्ड व्यूअर्स के लिए, कि वो कैसे मोटिवेट रहें और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें. See, for positive, I'll just say it is always there in your mind and for me मुझे लगता है एक healthy lifestyle ना आपको बहुत सारी चीज़ें बदलने में help करता है. And when you eat good food, you think good and you behave good. So that's what keep yourself very healthy. So automatic, that positive vibes will come. So yeah, keep yourself healthy. Absolutely. And in the end, you want to give out any message, especially अभी आप न्यू जर्सी में हैं, तो कोई ऐसी स्पेशल मैसेज यहाँ के लोगों को? So this is the first time I'm in US and बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा मुझे लोग ट्रीट करेंगे और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. एंड मैं न्यू जर्सी को बहुत प्यार करती हूँ. दे लिटरली उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है एंड कीप लविंग मी. थैंक यू सो मच. Thank you so much for coming. Thank you and wishing you all the best. Oh, thank you so much.